Hello everyone. Good afternoon to each and everyone. So myself Neha Sharma from the Future Doctor. Today I'm your host. So first of all, I would like to welcome each and everyone for today's webinar. Today's webinar is for the one of the university. We are going to represent the Kyrgyz Russian Slavic University. Before starting the our webinar, I would like to request everyone to mute themselves. Next. So first of all, before starting the webinar for the university, मुझे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी about the future doctor education services कि future doctor education services कब start हुआ था. तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी the advantages of consulting future doctor education services. हमें ही क्यों चूज करना चाहिए, हमारे ही थ्रू क्यों अब्रॉड में आपको एडमिशन लेनी चाहिए. तो the first is a one-stop solution for all your international course consultant requirement. जो हम फ्यूचर डॉक्टर है ये 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था. दिल्ली में हमारा फर्स्ट ऑफिस था. देन हमने जो है हमारे साउथ में एंड देन महाराष्ट्र नासिक में हमने इस्टेब्लिश किया था. द फाउंडर इज डॉक्टर अमित बोराडे. तो वो एज द फाउंडर ऑफ फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज. तो फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज ही क्यों. तो जैसे मैंने बताया कि वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल इंटरनेशनल कोर्स कंसल्टेंट रिक्वायरमेंट. हम जो है अब्रॉड एमबीबीएस जो है अब्रॉड के लिए एडमिशन करते हैं. 24/7 सपोर्ट सर्विसेज होती है. अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी इश्यू आते हैं, 24/7 हम अवेलेबल होते हैं. आप कभी भी हमें मैसेज कॉल कर सकते हो. ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस होती है. जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है कि कैसे होगा, कैसे किया जाता है. एक्सपीरियंस स्किल सपोर्ट स्टाफ है. जो हमारे जो स्टाफ है फ्यूचर डॉक्टर्स के, मिस्टर श्रीकांत पवार जो कि रिप्रेजेंटेटिव है, साथ ही एडमिशन एडवाइजर है. मिस्टर हरीश पारस्कर जो कि एजुकेशन काउंसिल है. और मिस पूजा तिवारी जो कि डॉक्यूमेंटेशन करती हैं. बैक ऑफिस इज देयर जो कि आपको ये सारे स्टाफ जो है काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसमें हेल्प करते हैं. आपकी जो कंसल्टेंसी जो कंपेटिटिव कंसल्टेशन फीस है उसके बारे में आपको बताया जाता है. प्रोसेसिंग चार्ज जिसमें कि ईएमआई अवेलेबल है कि आप जो है उसमें एज ए ईएमआई आप उसको पे कर सकते हो. हिस्ट्री ऑफ सक्सेसफुल एमबीबीएस एडमिशन ऑल ओवर वर्ल्ड है. हमारे थ्रू जो स्टूडेंट है मोर देन 3000 स्टूडेंट्स जो है वो जा चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में. इन रशिया, फिलीपींस, यूक्रेन, जॉर्जिया. We have more than 150 universities, but today we are going to talk about the one of the top university, Kyrgyz Russian Slavic University. Reputed consultancy in field of abroad study है. that I will tell you कि हमें क्यों reputed consultancy in abroad के लिए studies के लिए है. ऑफिशियल पार्टनर्स हैं हमारे जैसे कि as I told you, Mr. Dr. Amit Borade and Miss one of our guest will be there who will be the representative of the Kyrgyz Russian Slavic University. So affordable fees services है. आपकी जो अगर आपके जैसे टीम डेडिकेशन डेस्टिनेशन है फ्यूचर डॉक्टर, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वो वी आर रेडी टू हेल्प यू इन 24/7 डे. नेक्स्ट. Next. Yeah.
As I told you about the Future Doctor, it's a reputed consultancy because we have received many awards. The first award we received in 2018 for the best education consultancy in medical program by the renowned actress Soha Ali Khan, who is the sister of Saif Ali Khan. In 2019, we have received the award as the best leading medical educational consultancy from the famous Bollywood actor Govinda, as everyone know him. Next. And the third award also we have received from as a most trusted medical education consultancy in India from the evergreen Bollywood actor Jackie Shroff. And last but not the least, again the fourth award also we have received in recently in 2021, the trusted medical education consultancy from the medical for medical program from the Bollywood actor Sunil Shetty. So that's why I told you that we are the one of the reputed consultancy. Many students have जो कि हमारे थ्रू जा चुके हैं. हमें ना ही हमें बॉलीवुड इसी अवार्ड मिला है, हमें जो है अवार्ड काफी मिल चुके हैं फॉर द ट्रस्टेड एंड द लीडिंग एजुकेशन कंसल्टेंसी के लिए. नेक्स्ट. So about the Kyrgyz Russian Slavic University, आगे मैं मिस्टर डॉक्टर अमित बोराडे को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो आगे का जो है अबाउट द यूनिवर्सिटी बताए. Who is the representative as well as the founder of the Future Doctor Education Services. Mr. Amit, sir. Hello everyone, this is Dr. Amit Borade. There must be some problem with the video. We are trying to fix it as soon as possible. Yeah, so it's already fixed. So I would like to tell all of you that first I wish you a best career for MBBS in abroad. First thing is that. After that, I would like to tell all of you about KRSU, Kyrgyz Russian Slavic University. जैसे कि आप लोग सब जानते हो, right now you guys are moving towards your career, and यहाँ पे अगर बात की जाए आपके करियर की, तो Kyrgyz Russian Slavic University is the best for your career, MBBS के लिए स्पेशली. इसके कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा. अभी जो एडमिशंस हो रहे हैं दैट एडमिशंस आर फॉर सितंबर इनटेक. जैसे कि नीट का रिजल्ट लेट आया था और नीट में लेट हुआ थी सारी चीजें, रिजल्ट भी लेट आया, एग्जाम भी लेट हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. तो वहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश टोटली, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं. 6 years इंटर्नशिप है वहां पे, 6 years कोर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है. आफ्टर दैट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आप हमारे काउंसलर्स को कॉल कर सकते हैं, जिनके नंबर आपको एंड ऑफ द सेशन में दिए जाएंगे, या फिर जो लोग यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो उनको वहां से भी वो नंबर स्क्रीन के नीचे भी मिल सकते हैं. सो दैट इज पॉसिबल. तो उसके बाद देखा जाए तो ये लोकेटेड बिश्केक में है और यहाँ की जो डिग्री है वो एनएमसी अप्रूव्ड है. एनएमसी अप्रूव्ड होने की वजह से आपको अगर कोई दिक्कत आती है वहां पे तो आप इजीली मतलब एनएमसी इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके आप इजीली
मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशन ले सकते हो उसी चीज के, उसी के साथ साथ आप इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसी के साथ आप यूएसएमएलई वगैरह में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और कंट्री रैंक जो है यूनिवर्सिटी का वो रैंक 1 है, फर्स्ट थिंग इज दैट। तो इस हिसाब से यहाँ पे एमबीबीएस विल बी ऑलवेज बेटर ऑप्शन फॉर यू गाइस। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे एडवांटेजेस की, आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द स्क्रीन। सो आपको अगर आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं या फैमिली में डिस्कस करना है, सो दैट विल बी इजी फॉर यू। Yes. So we will talk about the advantages of studying an MBBS in Kyrgyz Russian Slavic University. यहाँ पे जो होल कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में है, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। एकेडमिक फीस ही कंपैरेटिवली लो है एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स को, फाइनेंशियली भी दे कैन मैनेज। द एंटायर एडमिशन प्रोसेस इज इजी एंड सिंप्लीफाइड विदाउट डोनेशन, नो हिडन चार्जेस। तो इससे होता क्या है, आपको कोई भी आगे प्रॉब्लम्स आते हैं या कोई भी चीजें आती है, यूजुअली मैंने देखा है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में हिडन चार्जेस या डोनेशंस के ही रहते हैं वो प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे ऐसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है आपको। उसी के साथ एमबीबीएस डिग्री जो यहाँ पे ऑफर्ड की जाती है वो रिकॉग्नाइज्ड है वर्ल्ड वाइड, एनएमसी अप्रूव्ड है एज वेल एज। अगर हॉस्टल की बात की जाए तो हॉस्टल जो है वो एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज चीपर है और हायर फैसिलिटीज के साथ है। मतलब जो कि मेरा देखने में आया है, केआरईएसयू का जो हॉस्टल्स है वैसे हॉस्टल कम ही कॉलेज में होंगे, या होंगे भी या नहीं मालूम नहीं। सो दैट इज द थिंग। उसके बाद द एकेडमिक एमिनिटीज आर स्पेक्टेकुलर एंड मेक योर स्टे कंफर्टेबल एंड वर्थ द वाइल। इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं कि एमिनिटीज जो प्रोवाइड की गई है एकेडमिक, जैसे कि डिजिटल क्लासरूम्स वगैरह सारी चीजें वहां पे है, तो आपका लाइफस्टाइल और कंफर्ट जोन और बढ़ा देते हैं, सो दैट आपको स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी किर्गिज रिपब्लिक में सबसे हायर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जानी जाती है, और मोर रिसर्च ऑप्शन है वहां पे। और जैसे कि रिसर्च सेंटर्स भी है खुद यूनिवर्सिटी के, ताकि स्टूडेंट्स को अगर रिसर्चर, क्लिनिकल रिसर्चर वगैरह में भी करियर करना है, सो दे कैन डू दैट। So let's talk about the Kyrgyz Russian Slavic again. The duration, जैसे कि ड्यूरेशन कैसे डिवाइड हो रहा है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में कैसा है, 6 इयर्स कोर्स बोला तो जाता है, बट वहाँ पे एकेडमिक के लिए थेरोटिकली होता है, बट यहाँ पे डेडिकेटेडली 6 इयर्स है। और 5 इयर्स का जो आपका है वो थेरोटिकल है, 1 ईयर क्लिनिकल प्रैक्टिस है। जो 5 इयर्स थेरोटिकल है उसमें भी प्रैक्टिकल्स हो रहे, नहीं ऐसा नहीं, बट 1 ईयर डेडिकेटेडली प्रैक्टिस। During the second and third year, student can take part in practical research as well. मतलब research centers जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें भी students can take part. Intake for MBBS admission in Kyrgyz Russian Slavic University की अगर आप बात करते हो, तो intake की अगर बात की जाए, the admission of MBBS undergraduate and postgraduate course at Kyrgyz Russian Slavic University opens from July, runs till September. ये बहुत अच्छी चीज है, बट ये अभी इस साल से ये क्राइटेरिया चेंज हो गया है। लाइक यहाँ के जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बताया गया है, बट अंडर ग्रेजुएट के एडमिशंस बहुत 5 या 10 दिन के लिए ही चालू होते हैं। सो दिस इज वेरी गुड थिंग वी विल से, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया से ही आते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स होने की वजह से इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है बच्चों पे। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में 1000 1500 स्टूडेंट्स का एजुकेशन किया जाता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो। और यहाँ का जो वीजा है वो जल्द से जल्द अप्लाई, वीजा के लिए यहाँ पे इन्विटेशन के लिए भी आपको दिक्कत नहीं है। वीजा इशूड ओनली आफ्टर यू रिसीव अ इनविटेशन लेटर। ये जो है इनविटेशन लेटर क्यों लगता है, बिकॉज यू आर गोइंग ऑन स्टूडेंट वीजा, तो स्टूडेंट वीजा के लिए यू विल नीड अ इनविटेशन लेटर फॉर श्योर, तो that you will get for sure. After that, if you talk about the accreditation or recognition, तो इसके लिए अगर बात की जाए तो एनएमसी अप्रूव्ड है कॉलेज, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, जो कि एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन, अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का ही नाम है वो। दैट इज WHO से अप्रूव्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस किर्गिज रिपब्लिक किर्गिस्तान, किर्गिस्तान भी बोलते हैं बहुत लोग, अभी इनका नाम 2019 से किर्गिज रिपब्लिक ही है। यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन यूएसएमएलई, उसके लिए आप इजीली
अपीयर कर सकते हो, प्लैब के लिए कर सकते हो, MRCP के लिए कर सकते हो, NMC नेशनल नेपाल मेडिकल काउंसिल के लिए भी कर सकते हो, इवन यूके के एग्जाम पे MRCP प्लैब वहां पे भी कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया AMC वहां पे भी कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर सो मेनी काउंसिल्स फ्रॉम हियर. Why should students study at Kyrgyz Russian Slavic University? यहाँ पे क्यों पढ़ाई करनी चाहिए? Due to low cost fee structure, Kyrgyz Republic is great option for MBBS. First thing is that Kyrgyz Republic में जितने भी कॉलेज है वो लो कॉस्ट है. लो कॉस्ट मीन फी स्ट्रक्चर कम है, लाइफस्टाइल वहाँ पे नॉर्मल अमाउंट में बहुत बेहतर आपको लाइफस्टाइल मिलती है, बिकॉज वहाँ पे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा है. इसलिए ट्रांसपोर्ट की वजह से कोई भी चीज अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है लाइफस्टाइल अगर एक्सपेंसिव होगी तो बहुत अच्छा है. इट्स नॉट लाइक दैट. जहाँ पे एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है वहाँ पे कनेक्टिविटी कम होने की वजह से बहुत बार बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो वेज है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाती है और वहाँ की लाइफस्टाइल इंक्रीज हो जाती है. यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है इजीली कनेक्टिविटी होने की वजह से कोई भी चीज इंडियन चीजें भी वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है. जैसे कि मैंने विजिट किया है, आई स्टडीड इन किर्गिज रशियन स्लाविक्स हॉस्टल ऑल्सो. हॉस्टल में मैं रहा हूँ, नॉट एज अ स्टूडेंट बट एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं वहाँ पे रहा हूँ. तो वहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है, हॉस्टल्स में इंडियन फूड मिलता है, सो दैट इज ऑल्सो द थिंग. तो मतलब इजीली इन लो कॉस्ट यू कैन मैनेज इजीली. उसके बाद देखा जाए देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग क्वेश्चंस, मे बी आई कैन सी दैट. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर एक थोड़े देर बाद आपको सारी स्लाइड्स होने के बाद हम लोग दे देंगे, तो प्लीज वेट फॉर दैट. हमारे यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लाइव में और यहाँ पे भी, तो ठीक है, वी विल आंसर दैट फॉर श्योर. Okay, students who complete their MBBS degree from Kyrgyz Russian Slavic University can get limitless opportunities all over the world, as a degree is NMC approved and recognized worldwide. यहाँ की जो डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होने की वजह से आप कहीं भी इजीली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर सकते हो. स्पेशली at Kyrgyz Russian Slavic University, the primary language for the MBBS course is English. The first language for MBBS course is English. तो इससे बेहतर तो I don't think so कुछ हो सकता है. The university has an easy and simplified admission process. मतलब बहुत सारा हेल्दी, ये फॉर्म भरो, वीजा के लिए अलग से अप्लाई करो, तो ये सारी चीजें नहीं. यहाँ पे जो स्टूडेंट जाते हैं उनका वीजा इंटरव्यू भी नहीं होता है, so they don't have to suffer a lot, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुद ही इन चीजों का पूरा ख्याल रखती है. पहली चीज. उसके बाद The university provides hostels at cheaper cost. मतलब हॉस्टल जो है वो बहुत कम, इसमें बहुत ज्यादा है. इवन where I was staying, in which hostel I was staying, वहां पे मैंने एक चीज देखी कि 2 बेडेड था, रूम हीटर्स अच्छे थे, उसके बावजूद वहां पे जो AC टाइप हीटर्स रहते हैं विच इज लाइक वॉल के ऊपर हैंग रहते हैं, तो वो भी वहां पे अवेलेबल थे. उसके बाद कबर्ड्स हाई क्वालिटी के थे. Everything was with high quality and cost was very normal. The university provides students studying in MBBS in Kyrgyz Russian Slavic get excellent amenities both at the university and the hostel. वो तो मैंने आपको बताया. और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना ही एक्चुअली एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जितना बात करेंगे उतना कम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोर डेवलप्ड जस्ट लाइक यूरोपियन कंट्रीज यू कैन से. और यहाँ पे कुछ लिमिटेड कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस की फैकल्टी अलग है, उसके बाद रशियन स्टूडेंट्स हैं, कुछ अलग कंट्रीज से भी है. बट वी विल से कि ऐसे कंट्रीज से स्टूडेंट्स ने जहाँ से प्रॉब्लमेटिक हो जाए यूनिवर्सिटी को, बहुत सारे कंट्रीज को यूनिवर्सिटी ने खुद बैन कर दिया है. So that is very good कि इन चीजों में भी university is not thinking about their profit, they are thinking about students' future. So that is very nice thing. इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी बात करते हैं. जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत बोला, तो the Kyrgyz Russian Slavic University provides world-class facilities and amenities to its students. The infrastructure and facilities provided here are as follows. The Kyrgyz Russian Slavic University have 25 tremendous institute for students. 25 अलग-अलग इंस्टीट्यूट है. एनेस्थेटिक एजुकेशन के लिए भी वहां पे है. 6 बिग सेंटर फॉर रिसर्च, 6 रिसर्च सेंटर्स है. 15 ह्यूज एजुकेशनल एंड साइंटिफिक सेंटर्स, 15 साइंटिफिक सेंटर्स भी है, एजुकेशनल सेंटर्स भी है. 4 लार्ज साइज लैबोरेटरीज फॉर स्टूडेंट्स. सो यू कैन सी द इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कम ही ऐसा किसी एशियन या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी में भी कम ही देखा जाता है.
On the campus of KRSU, various cultural and cultural activity centers are also available. Yeah, the university has well-equipped library, and the university provides hostel facilities to its students. On the campus of KRSU, various sports facilities like tennis, basketball, football, volleyball, cricket, there are so many things are available. So students who are cricket lover or volleyball lover, they can easily survive there. उसके बाद अगर बात करते हैं हम द यूनिवर्सिटी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ की बात करते हैं, pays great attention, इवन स्टूडेंट्स के लाइफस्टाइल पे भी इनका यूनिवर्सिटी का अच्छा खासा कंट्रोल है. लाइक जैसे कि मेरे लास्ट टाइम बात हुई थी कुछ डेलीगेट से ये KRSU क्या, उन्होंने एक चीज ही कही थी कि हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट जाते हैं वो बस डिग्री नहीं लेके जाते, बट एक एटीट्यूड लेके जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर करियर, टुवर्ड्स देयर फ्यूचर, जहां से उनको इजीली बहुत सारी चीजें अचीव करने में आसानी हो जाती है, पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप हो जाती है स्टूडेंट्स की. तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई यूनिवर्सिटी आपके लाइफस्टाइल पे भी वर्कआउट करे. द यूनिवर्सिटी पेज अ ग्रेट अटेंशन to the physical and mental fitness of the students, and thus it takes care of their overall development. The university believes in the holistic. ये देखो एक क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा है सर, फीस अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, तो मैं एक अप्रोक्सीमेट बोल देता हूँ. पर सेमेस्टर इट इज 1,08,750, तो बहुत ही कम है, 1,08,750 पर सेमेस्टर. तो आगे मैं इलेबोरेट कर दूंगा फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, हॉस्टल में सारी चीजें, बट ये कॉलेज की फीस है. तो अभी ये क्वेश्चन आपको एंड में है वैसे, तो वहां पे पूछ लीजिए. द यूनिवर्सिटी बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी स्टूडेंट स्टडिंग at the university, and for that the student offers various type of cultural and activity centers inside the premises. So from this point you can get everything कि ये elaborate करने की जरूरत नहीं है point, क्योंकि various type of की cultural activities भी होती है वहाँ पे, कि central activity बहुत सारी sorry centers है वहाँ पे, activity centers inside premises है, तो बच्चों को बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है. KRSU offers a various sports facilities inside the college premises such as a football, tennis, basketball, volleyball, and last time when I was there we played a cricket also, so cricket is also there. So students are encouraged to participate in various different activities like cultural activity, if you will say, and cultural festival. There are so many activities, so students can easily participate in that. तो वहाँ पे ऐसी कोई problem आपको नहीं आएगी in future, that is for sure. Okay, so हमारे साथ यहाँ पे कुछ KRSU के graduates भी है. They will tell, मतलब they are graduating this year. So उनके जो photos है वो मेरे पास अभी आए हैं. So even उनके बारे में भी अगर बात की जाए तो उनसे भी हम बात जरूर करेंगे अभी थोड़ी देर में, और वो भी उनका एक एक्सपीरियंस बता देंगे आपको. तो मैं सबसे पहले अबाउट बिश्केक के बारे में जानने से पहले आई विल डू वन थिंग कि मिस्टर कृष्णा इज हियर. कृष्णा, आई विल अलाउ यू टू टॉक. आपका वीडियो नहीं आएगा, बस ऑडियो आएगी. सो आप इजीली स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे जो कि डायरेक्टली आपसे पूछना चाहते हैं, सो यू कैन आंसर दैट. आई थिंक यस कृष्णा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ. नमस्ते सर. नमस्ते. आज हिंदी राष्ट्रीय भाषा, एज यू सेड बिफोर ऑल्सो, तो हम हिंदी में एक बार बात करेंगे ताकि सबको समझ में आ जाएगा. आपका ओवरऑल सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे. थैंक यू. पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ. पूछिए सर. यस, मुझे वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में, सिक्योरिटी कैसी है वहाँ पे. लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये सवाल रहते हैं कि हम इंडियन है तो वहाँ पे जाके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, या फिर हम, एक सवाल ऐसा भी है कि हम वेजिटेरियन है सर. तो मेरे ख्याल से आप भी वेजिटेरियन, हम लोग साथ में रहे हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ. तो सर पर्टिकुलरली अगर मैं KRSU हॉस्टल की बात करूँ सर, तो हमारे हॉस्टल में 24/7 सिक्योरिटी कैमरास हैं जो कि लाइव कनेक्टेड रहते हैं.
जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे। और सेकंड आपका क्वेश्चन था जो फूड, तो सर 6 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, मैं प्योर वेजिटेरियन अभी भी हूँ। तो हमारा जो भी कुक है वो इंडिया से आते हैं और वेजिटेरियन खाना हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है सर। That's really nice. सही में बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है एजुकेशन के हिसाब से आपको वहाँ पे पेशेंट्स दिखाए जाते हैं क्या, और आपको कितना प्रैक्टिस वहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रही है? सर इस क्वेश्चन का जवाब मैं थोड़ा अच्छे से दूंगा। Yes, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सर, केआरएसयू का जो भी हमारा पेशेंट एक्सपीरियंस रहा है ना सर, ये पूरे किर्गिस्तान में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, केआरएसयू जितना एक्सपोजर पेशेंट्स का, हमारा जो पेशेंट और मेडिकल स्टूडेंट्स का जो रहा है ना सर, वो किसी कॉलेज में नहीं है पूरे किर्गिस्तान में, मैं कह सकता ये हूँ। बात तो मैं भी जानता हूँ। लाइक पूरे रशिया मैं में भी नहीं है, पूरे यू कैन सी कि जॉर्जिया फिलीपाइंस भी मैं गया हूँ, बट जी सर, केआरएसयू जैसा मैंने खुद वाकई नहीं देखा है, दैट इज फॉर जी श्योर। सर, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वहां पे जो बुक्स आप प्रेफर करते हो, वैसे दाशा मैम विल बी देयर, सॉरी दारिया मैम विल जी बी सर, देयर, शी जी विल सर। टेल अबाउट दैट आल्सो। बट आप भी एक बार बता दीजिए कि जो बुक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो बुक्स मतलब कौन से बुक्स है, जी रशियन सर। बुक्स है या इंडियन बुक्स है? सर एक्चुअली हमारा पूरा कोर्स फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक का, हमारा हर सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम से एफिलिएटेड है। और सारी ओके, बुक्स है वो हमारी, जैसे कि ये केडी त्रिपाठी हो गई, फार्माकोलॉजी और पानिका, फार्माकोलॉजी। फॉर ये यस, सारी ये यस। हम लोग को प्रोवाइड करी हुई है यूनिवर्सिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ओके, दूसरी सर और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे पास यहाँ पर मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप ले लीजिए, या फिर हमारी साइंटिफिक रिसर्च ले लीजिए। अभी सर ओके, ये 22 मंडे को एक साइंटिफिक रिसर्च है, उसमें हम ओके, इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हम्म, हमारी मॉस्को, नोवोसिबिर्स्क और सेंट्रल रशिया और सेंट्रल एशिया, काफी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स ओके, को सर मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली केआरएसयू विल बी द बेस्ट ऑप्शन सर। बेस्ट ओके, ऑप्शन इन किर्गिस्तान, अमंग उज्बेकिस्तान, बेस्ट ऑप्शन इज ओनली केआरएसयू सर। okay. So हाँ, we will talk about this also. Thank you so much. Thank you. One last थैंक यू question सर। we have. टोटल जर्नी को यस आप सर। एक या दो सेंटेंस में कैसे एक्सप्रेस करोगे? लाइक आप नहीं कर सकते मालूम है, एक या दो सेंटेंस में, बट एक छोटा सा लाइक स्टडी वन ऑफ द पैटर्न, मोस्ट लाइफ डिफिकल्ट स्टाइल, क्वेश्चन फॉर मी आपको क्या सर। सीखने को मिला है वहां पे इतने दिनों में? लाइक आपको टोटल इतने साल हो गए वहां पे, आप क्या सीखे ऐसा कि जिससे आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा फायदा होगा? सर मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा सीखा। मेडिकल ओके, चलिए एमबीबीएस तो सब कोई करते हैं, बट एक पेशेंट से इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए रशिया में ओके, रहने के बावजूद भी, एक मैं आपको कैसे बताऊं सर कि कैसे हम लोग को इंटरेक्ट करना चाहिए पेशेंट से, नॉट ओनली विद पेशेंट बट विद योर कलीग्स, विद योर रिलेटिव्स, एवरीबडी। सही तो बात। ये जो माहौल हम लोग को मिला है ना सर, बहुत ही अच्छा माहौल है सर यहाँ पर। दैट्स रियली नाइस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू कृष्णा फॉर योर प्रेजेंस हियर। हो सकता है मैं आपको कुछ और सवाल भी पूछूं या आगे, श्योर तो आप सर, बने रहिए, leave मत कीजिए, श्योर सो सर, दैट आप और भी स्टूडेंट्स आपकी हेल्प ले सके। थैंक यू सो मच, श्योर सर। थैंक थैंक यू। यू सर। या सो जैसे कि आपने अभी सब सुना है, तो हम आगे की स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। सम नोटिसेबल थिंग्स अबाउट द बिश्केक सिटी, जहाँ पे ये कॉलेज लोकेटेड है। बिश्केक इज द, वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है, लाइक 1 मिलियन है बस, एज कम्पेयर टू एरिया बहुत ही कम है वो, सच में। वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा है, जैसे कि कम से कम 30 से 40 टूरिस्ट प्लेस तो होंगे नियर बाय। तो दैट इज ऑल्सो नाइस थिंग। एंड सिटी इज वेरी क्लीन सिटी, देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद अगर बात की जाए वहाँ के टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर की, तो विंटर में वो 0 डिग्री तक वहाँ पे टेम्परेचर रहता है, और समर में एक 20 डिग्री तक चला जाता है। सो दैट इज द थिंग। तो इस हिसाब से आप इस एटमॉस्फेयर को वहाँ पे जज कर सकते हो। लाइक एटमॉस्फेयर में आपको गर्मी भी मिलेगी, ठंडी भी मिलेगी, और बर्फ भी मिलेगा। दैट इज द थिंग। थैंक यू सो मच। आगे मैं अभी जाता हूँ इस स्लाइड के। अबाउट द बिश्केक सिटी ओनली, जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया है कि 17 इंचेस पर ईयर, ओके, यहाँ पे अराउंड मिलीमीटर्स, ओके, नो इशू। सो यहाँ पे की अगर बात की जाए, तो हायर टेम्परेचर यहाँ पे अभी तक जो गया है वो जनवरी में 3 डिग्री और
अबाउट जुलाई में 31 डिग्री तक गया है, जैसे कि इंडिया में भी जाता है वही चीजें। उसके बाद द समर मंथ्स आर डोमिनेटेड by dry periods punctuated by the occasional thunderstorm which produce rare dust storms and also strong gusty winds. Okay, तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो डस्ट वगैरह की चीजें तो रेयरली ही मिलेगी, उन्होंने खुद कहा है कि डस्ट स्टॉर्म्स भी नहीं है वहां पे। So after that, we will. I don't think so. This is the main language of international communication, Russian. After that, Kyrgyz. After that, English. Okay. So यहाँ पे आपको local जो people से usually Russian language में ही बात करते हैं सारे, और मैक्सिमम आपके कैंपस में जो भी बात होती है वो इंग्लिश में ही होती है। सो गाइस, यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग। और आपको एक रशियन का क्लास भी होता है, कोई क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि रशियन क्लासेस वहाँ पे, यस रशियन क्लासेस आपको जो वहाँ के नियर बाय लोग हैं मार्केट प्लेस में जाना है तो उसके लिए वो क्लास भी होती है। The accommodation provides to students at Kyrgyz Russian Slavic University comes with the following features. सबसे फर्स्ट जो है spacious and well ventilated rooms है, मतलब बड़े बड़े रूम्स है। रूम्स अवेलेबल ऑन अ शेयरिंग बेसिस पे। सीसीटीवी, जैसे कि डॉक्टर कृष्णा ने अभी बताया कि लाइक CCTV सर्वेलेंस भी अवेलेबल है, सिक्योरिटीज इज आल्सो देयर, इंडियन फूड एंड इंडियन मेस इज देयर, जैसे कि उन्होंने खुद बताया था अभी कि इंडिया से कुक है, इंडिया से कुक खाना बनाते हैं। मीटिंग रूम्स आर अवेलेबल ओवर देयर, हेल्दी क्लीन फूड रहता है वहां पे कि लाइक आपको किचन भी जाओगे तो बहुत साफ है। इवन मैंने खुद अभी लास्ट टाइम सेकेंड वेव जब इंडिया में चली थी, मैं खुद KRSU में ही था उसी टाइम पे, तो मैंने खुद वहां के मेस में बैठ के खाना खाया है। उसके बाद अफोर्डेबल एंड वेल फर्निश्ड वहां पे रूम्स है। तो दैट इज द थिंग। एक्चुअली दारिया मैम की कुछ मीटिंग आ गई है, अभी एक मैसेज आया है मुझे, तो वो 10 मिनट्स के लिए आ रहे हैं बस। 10 मिनट्स में किसी को भी कुछ क्वेश्चंस है और दारिया मैम, तो वो पोस्ट करके रखे मैसेज में या फिर क्वेश्चन आंसर में, ताकि उसका हम आंसर कर पाए। ओके। सो उसके बाद अगर देखा जाए हॉस्टल अकोमोडेशन का, तो किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी provides you the hostel with the facilities, water supply, food, televisions भी यहाँ पे अवेलेबल है, हीटर्स है, एयर कंडीशनिंग है, इंटरनेट सर्विस है, तो आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं। द हॉस्टल एट द यूनिवर्सिटी आर कंफर्टेबल एंड पॉकेट फ्रेंडली, मतलब बजट में है, पॉकेट फ्रेंडली। तो हॉस्टल ऑफर्स परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर स्टडिंग मेडिसिन, आपको मतलब बहुत ज्यादा रश वगैरह ऐसे कोई चीज नहीं हॉस्टल में। हॉस्टल इज वेरी स्पेशियस, तो पढ़ाई के लिए आसान हो जाता है। द ट्यूशन फी एज लिविंग एक्सपेंसेस एट द यूनिवर्सिटी आर अफोर्डेबल and make the Kyrgyz Russian Slavic University a popular destination among Indian students to study MBBS abroad. So this is why it is popular, because living expenses कम है यहाँ पे, ट्यूशन फीस कम है और फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा है। दैट इज द रीजन। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने की वजह से बहुत सारी फैसिलिटी कम बजट में मिल जाती है। हॉस्टल के रूम्स इसी तरह के हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 2 to 3 स्टूडेंट्स आर occupied in one room. Bed for Daria ma'am is here. I'll welcome her. Ma'am, I'll allow your voice. Your video will not be played because of maybe, as sir told me, you are outside and you are busy in some work. So we'll have only three to four questions. So I'm allowing you to unmute your mic. You can unmute your mic and I will ask you the question. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. Actually, our first question will be that we will proceed with the questions only. First of all, I would like to introduce Daria ma'am. Daria ma'am is a representative of Kyrgyz Russian Slavic University. Right now, she is busy in some work. So, student who already posted their question, I'll ask that. Sir, ma'am, first question is that what is the syllabus in KRSU? That is the question. First question. First of all, hello everyone. My name is Daria. I'm the official representative of Kyrgyz Russian Slavic University. So thank you for your question. And totally Indian syllabus, all Indian books will be referred, and same practical skills, just like Indian medical colleges. So students don't have to worry about their career.
KERSU will take guarantee of students' career, and student can practice in any part of the world, in government hospitals, for example, after completing degree. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you for this. As ma'am told you, not only about syllabus, but you can practice just like India over there. And Dr. Krishna also told you same thing. So we will go to the next question, as ma'am have very less time today. She was supposed to come for 2 hours, but due to some emergency work, she's not able to give all the time. So, ma'am, next question will be, what about the security of Indian students? So, how you guys take care of security of students over there? So, if we will talk about security, we have separate campus only for Indian students, as well as the campus is fully secure for both boys and girls. For girls, we have a separate hostel. So, Indian embassy is located near KERSU, only hardly 15 minutes away from KERSU campus, and we are here to take care of them if they will be sick or ill. Okay, so you guys just heard this thing. If you will be sick or ill in night or in day, so there are representatives. There are so many persons who will take care of yourself, and ma'am will be there also. So last question will be that, which is from so many students. So why do you suggest KRSU only for Indian students? So what is the reason behind that? So KERSU is topmost university outside India, which takes limited seats for Indian students. We do focus on students' career and lifestyle, and we promise to take care of their career. Also, when you finish your studying there, you can receive 2 diplomas of Russian Federation and Kyrgyz Republic. So this is very great opportunity to receive not only 1 diploma but 2. Okay, that's really nice. So that diplomas are valid in all over the world, is it? Yes, it's right. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much for your precious time. As you told us, you are busy in meeting, so next time we'll make one video with you within 1 or 2 days only. So it will be helpful for our students also. Thank you so much for your precious time, ma'am. Thank you so much. Okay, thank you so much, and I'm very sorry. Yeah, it's okay. We can understand your work also. So don't worry. Soon we will organize one video shoot for our students. No issue, ma'am. Okay. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Yeah, thank you. So as you heard this from ma'am only, that students receive 2 degrees from KRSU. That is really nice thing. This is rare in Russia, actually, in Russia or Kyrgyz Republic or Ukraine or anywhere in the world, because students only get 1 degree over there. So if you will talk about the hostel, right now we were on a hostel. So we go on second point, bed for each student in room is separate. For separate beds are available. They can join it, as you can see in picture also, 2 students were there. Blankets and pillows are there. Chair and stools for each students in room. Room heaters are available to maintain a temperature in cold season. And after that, electric socket are available for charging laptops and mobiles. Even cupboards are separate for each student. So that is the very good thing, that you have everything separate. You don't have to fight for each and everything. Security locks are also available for cupboards. Study table is also available over there. Mirrors are also available, and side table are available for to keep books and study material. फ्लोर मैट्स आर देयर, जैसे कि कोल्ड एटमॉस्फेयर है, सो आपको फ्लोर मैट्स भी वहां पे मिलेगी. फॉर एनवायरमेंट, टीवी इज आल्सो अवेलेबल इन रूम. सेपरेट बेड इज अवेलेबल फॉर ईच स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया. एंड स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप स्टडी वगैरह भी कर सकते हैं. लाइक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. नाउ फूड इज वेरी मेन थिंग. खाना बहुत जरूरी चीज है बाहर. तो यहाँ पे इवन महाराष्ट्रियन खाना भी है, साउथ इंडियन भी है, नॉर्थ इंडियन भी है. सबसे अच्छी बात ये, इंडियन फूड इज अवेलेबल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. ऑल स्टूडेंट्स
all Indian snacks, lunch. Snacks means breakfast, lunch, and dinner is provided. Cook is available for South Indian and North Indian and Maharashtrian also. After that, above and Rajasthani also, there are separate cooks, not separate, but 2 to 3 cooks are there who are separated for each and every. जैसे कि food habits हर स्टेट की अलग अलग है, तो उस हिसाब से आपको खाना मिलता है. जैसे कि मैं अभी साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन की बात हो ही गई है, सो आई विल टॉक वन थिंग. अगर आप साउथ इंडिया से एडमिशन करवाना चाह रहे हो तो वी हैव आवर ऑफिशियल पर्सन्स ओवर देयर. Dr. Naresh is from South India. He can guide you over there. His office is in Visakhapatnam, and the students who are from North India and Middle India, they can contact us Future Doctor directly. So desserts are also available in food, like some sweets and everything will be provided. So this kind of food is there. So right now we will see one small video, and after that we will talk about the services and fee structure. That is really good. So we will talk about services and fee structure. Maybe for the persons who are on YouTube channel, they can contact our counselors for fee structure, because fee structure you will not be able to see fee structure. आप लोग fee structure नहीं देख पाओगे जो कि YouTube पे है या फिर Facebook पे है. ऐसा भी हो सकता है. Facebook पे it will be live maybe. तो फी स्ट्रक्चर अगर जानना चाहते हो तो स्टूडेंट डायरेक्टली काउंसलर को कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे. तो वी विल कम ऑन दैट वीडियो जो कि इस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा. Hello, my name is Satyam Bhardwaj and I am from India, Uttar Pradesh. Hi, I am Shrajna and I am from India, Andhra Pradesh. I am studying in Kyrgyz Russian Slavic University, and it's an English medium university, which is governed by both Kyrgyz and Russian governments. In the first year, we are studying just the basic medical knowledge and we are gaining it. And after that, the medical level will get raised. We will practice in several clinics of this university. Here, we are studying the anatomy, physiology, psychology, microbiology, histology, virology, chemistry, physics, biology, mathematics, which are applied in the medical field. The faculty here is very good and the quality of education is very good. Here, the other students are also very well cooperative to you and are very friendly to you. This university has a well-defined library having English and Russian books. Along with the medical study, we are also studying the Russian language here, which will help us in living in the city and in dealing with the patients after 3 years of the study. And the university not only concerned about our studies, it also concerned about our secure social life. We are also enjoying here in concerts and in our social life. We are studying with our co-students from different 15 countries. For example, there are students from Kazakhstan, from Syria, from Jordan, from Korea, China, Russia, Afghanistan, Iran, and of course from India. And after a few years, it is recommended practice for the MCI. To clear the MCI will also be given to the foreign students who belongs to India. So that's all about the Kyrgyz Russian Slavic University. So now we will come to the admission processes. Like जैसे कि बहुत अभी time कम बचा है, there are so many persons who want to ask so many questions. तो questions को भी हम half hour देंगे, कुछ time दे देंगे. तो I will like to tell you about fee structure and services. Miss Neha ma'am was supposed to tell, but it will be better if I'll tell you. So our services, if you will take admission through Future Doctor Education Services, so what you will get in that services? So you will get, first of all, you will get an air ticket from Mumbai or Delhi to directly Bishkek. Student can directly travel to the university. Bishkek में airport से 15 minutes का distance, 20 minutes का distance है यूनिवर्सिटी का. तो आपको बहुत ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं. विद इन 5 से 6 घंटे में आप दिल्ली भी नहीं पहुंच पाते या फिर महाराष्ट्र से
या फिर दिल्ली से महाराष्ट्र भी नहीं पहुंच पाते, या दिल्ली से साउथ में केरला भी जाने दो, आप एमपी की भी बात करो, नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे आप उतनी देर में पहुंच जाते हो 6 आवर्स में। एडमिशन लेटर मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी का, इनविटेशन लेटर जो वीजा के प्रोसेस के लिए चाहिए रहता है, उसमें आपको वीजा खुद नहीं लगाना है, वो वीजा भी फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज खुद ही आपका करके देंगे। बहुत सारी जगहों पे वीजा के चार्जेस एक्स्ट्रा या फिर टिकट के चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं है। उसके बाद आपको केयर टेकर सीसी अमाउंट में अवेलेबल है, जैसे कि दारिया मैम ने भी कहा, मिस दारिया टोल्ड अस कि हाँ वी विल टेक केयर ऑफ आवर स्टूडेंट्स इफ दे विल फॉल सिक और कुछ भी चीज होगी, तो देयर आर सो मेनी केयर टेकर्स, दैट्स व्हाई शी कैन टेल यू विथ दैट मच यू कैन से कॉन्फिडेंस, क्योंकि केयर टेकर होंगे तो इसीलिए आप पे ध्यान ज्यादा रहेगा, कुछ भी दिक्कत आती है तो इसीलिए। इंग्लिश मीडियम लाइब्रेरी कार्ड विल बी प्रोवाइडेड। पुलिस रजिस्ट्रेशन, कल को आपका पासपोर्ट कुछ मिस हो जाता है या डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन में आपको न्यू पासपोर्ट बनवाना है तो इजी प्रोसेस रहता है अगर आप पुलिस रजिस्ट्रेशन करते हो, वो भी फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन करवा के देगा आपको। मेडिकल चेकअप जैसे कि कोविड की वजह से कंपल्सरी है तो वो भी हम लोग करके देंगे आपको। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, जैसे कि हर कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके लिए इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लगता है, तो that certificate also we will provide you. After that, document translation, passport, mark sheet, 12th mark sheet, English to Russian language with notary and attestation. तो ये भी हम लोग ही आपको प्रोवाइड करके दे देंगे। तो उससे होता क्या है, ये इक्विवेलेंसी और डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन अगर ये आप नहीं करते, बहुत सारे कंसल्टेंट ये चीज नहीं करते, तो स्टूडेंट्स को फिर डिग्री के बाद दिक्कत आती है, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर में ही सब हो जाता है। उसके बाद अपोस्टिल एंड लीगलाइजेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं विदेश मंत्रालय से, क्योंकि आपका मार्कशीट चेक करने के लिए तो वहाँ की गवर्नमेंट हर स्टेट में तो आएगी नहीं, एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो वहां पे एक चीज है कि अपोस्टिल आप करते हो मिनिस्ट्री से, विदेश मंत्रालय से भारत के, तो आपको इजीली वेरीफाई हो जाता है मार्कशीट वहां पे। उसके बाद एयरपोर्ट पे बच्चों को अकेले स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट पे जाते टाइम हमारे रिप्रेजेंटेटिव खुद आपके साथ होंगे, वहाँ के सिम कार्ड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद अगर मेस अगर लेट चालू होती है या कुछ भी होता है, ऐसा यूजुअली होता नहीं, बट बहुत सारे कंसल्टेंट जानबूझ के लेट मेस चालू करते हैं, बट ऐसी अगर कंडीशन नेचुरली भी आ जाती है तो आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत नहीं, ये सारा इसी फ्यूचर डॉक्टर में है, फ्यूचर डॉक्टर ही आपके लिए करेगा। और एनएमसी और एमसीआई का रजिस्ट्रेशन भी होता है, इन फ्यूचर भी या अभी भी होता है, तो वो सारे रजिस्ट्रेशन फ्यूचर डॉक्टर खुद ही करेगा, सो दैट इज रियली नाइस थिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट्स ले लें। ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें आपको एक चीज पता चलेगी कि लाइक 6,50,000 रुपीज में आपका सब हो रहा है, सब एवरीथिंग, खाना पीना रहना, प्रोसेसिंग चार्जेस, और ये जो सर्विसेज मैंने बताई ये भी 6,50,000 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से आपको जो चार्जेस है वो $2,900 ट्यूशन फीस है, $600 हॉस्टल फीस है और $1,100 मेस फीस है, जो कि $4,600 बनते हैं। और रुपीज में अगर इंडियन रुपीज में बात की जाए तो 3.5 लाख तक, 3,45,000 तक ये सारा जाता है। तो ये अगर आप बजट देखोगे तो KRSU जो बजट है तो वो ज्यादा से ज्यादा आपका 22-23 या 25 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, कितना भी स्ट्रेच आप करोगे तो 25 लाख में डिग्री इज इम्पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वी विल से कि बहुत कम कॉलेजेस थे। और क्वालिटी वाइज भी रशियन स्लाविक क्वालिटी जो है, मेरे ख्याल से, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी की जो क्वालिटी है वो यूरोपियन कॉलेजेस जैसी है हम बोल सकते हैं, या उससे कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, दैट इज द थिंग। तो इस हिसाब से है। डॉक्टर कृष्णा इज स्टिल देयर विद अस, so there are some question for Dr. Krishna. I'm allowing you to unmute again. Sorry to keep you waiting. आपको बहुत ज्यादा टाइम आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी सबसे पहले। जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि आपसे ही पूछना चाह रहे हो कि कृष्णा आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं आपका माइक मेरे ख्याल से भी। हेलो
Yes, Dr. Krishna. Yeah. So बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, जैसे कि टाइम भी बहुत कम बचा है हमारे पास, तो क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो कुछ स्टूडेंट्स आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि आप पर्सनली एक आपका एक ओपिनियन अगर बता दे कि वहां से डिग्री करने के बाद इंडिया में कोई दिक्कत आती है या नहीं। सर यहाँ से डिग्री करने के बाद सर इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बट जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो बच्चे यूएसएमएलई या फिर प्लेब अगर इसकी भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी सर, आपने शुरुआत की स्लाइड में बताया था, वो कैलिफोर्निया से भी रिकॉग्नाइज्ड है, तो मेरे हिसाब से तो सर कोई मतलब टेंशन नहीं है सर इधर से। ओके, दैट इज रियली नाइस। और उसी के साथ अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे एडमिशंस के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं या फिर कितने, मतलब क्वांटिटी कितनी है टोटल इंडियन स्टूडेंट्स की? सर एक्चुअल क्वांटिटी पर ईयर एडमिशन सर 80 सीट्स हैं हमारे कॉलेज में, और क्वांटिटी सर आई थिंक सब मिला दें तो 300 स्टूडेंट, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं है, तो इसलिए हम लोग को जो बाकी क्लासेस यूनिवर्सिटीज में देखा जाए तो 1500 2,000 3,000 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो मैनेज करने के लिए भी आसानी नहीं होती और पर्सनल स्टूडेंट्स पे ध्यान देना भी नहीं होता है। सो ये सही में अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये और पड़ता है। जी सर। यस बोलिए। सर इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि जैसे जो हमारे टीचर्स है ना, तो अगर वो दूसरे कॉलेज को भी अगर पढ़ा रहे हैं इनफैक्ट, और अगर तो हमारे तरफ पढ़ाने से है ना एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है उनका। वो एक तो बच्चे कम रहते हैं और फिर हर बच्चे पर उनका बराबर ध्यान जाता है। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या है, एकदम एक बंच ऑफ स्टूडेंट हो जाता है उसमें, मतलब 20 बच्चे एक ग्रुप में, और हमारे यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप में मैक्सिमम 7 स्टूडेंट्स, दैट तो डिफरेंस है सर। प्रैक्टिकल्स के लिए भी आसानी है। ग्रुप सिस्टम जो होता है वो प्रैक्टिकल्स के लिए होता है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ नहीं मालूम होगा। प्रैक्टिकल्स के लिए 7-7 स्टूडेंट्स के ग्रुप जाते हैं और लेक्चर के लिए टोटल एक साथ ही सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो ये वाला फॉर्मेट है। आगे का क्वेश्चन ये है कि वहाँ के आपके कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट इंडिया से है वहाँ पे, ऐसा भी एक क्वेश्चन आए मेरे ख्याल से, या अंकिता कुमारी करके नाम है, तो यू कैन टेल कि अलग अलग स्टेट से सर कौन कौन से। हमारे केआरएसयू में ऑलमोस्ट सारे स्टेट से हैं और वी लिव वेरी फ्रेंडली। मेरे ख्याल से मैं लास्ट टाइम जब आया था इवन स्टेट ही नहीं तो नेपाल से भी स्टूडेंट थे। नेपाल से भी यस वो कोई तो भी राइटर था, आई फॉरगॉट हिज नेम। यस तो उसने पोएम भी एक सुनाई थी बहुत अच्छी, स्टिल आई रिमेम्बर दैट, कि यस सीता वाज फ्रॉम दैट एरिया, तो उन्होंने वो बताया था। दैट इज रियली नाइस। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारे बाकी जो क्वेश्चन है वो फीस रिलेटेड ही है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एडमिशन प्रोसेस और फीस के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7499913791 मिस्टर हरीश सर, 7499913794 मिस नेहा मैम, 7499913795 मिस्टर श्रीकांत सर। श्रीकांत सर इज रिप्रेजेंटेटिव फ्यूचर डॉक्टर एजुकेशन सर्विसेज, आप इन सब से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कृष्णा, दैट वी विल कंक्लूड नाउ बिकॉज इट वाज ओनली फॉर 1 आवर। सो 1 घंटा हमारा हो चुका है ताकि बहुत सारे लोगों को पर्सनल वर्क भी हो सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, इतना यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं दे पाते। तो थैंक यू सो मच। अगली बार कुछ भी होगा तो डेफिनेटली वी विल हेल्प यू फॉर श्योर। ओके, या थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू। So Dr. Krishna is also from actually he is preparing for, he also told meeting से पहले उन्होंने बताया था कि सर मैं टाइम तो दे दूंगा बट he is busy in his studies also, further studies जो भी है उनकी उसमें भी वो busy है, इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए कुछ भी स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चन है जो वैलिड पॉइंट्स है उस पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा यूएसएमएलई के लिए, तो यूएसएमएलई का आई कैन आस्क नेहा मैम, इफ यू कैन रीड सम क्वेश्चंस, कैन यू रीड दैट फ्रॉम योर साइड? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ ओनली, आप ये ऑन नहीं करोगे देना। यस सर। यस मैम। या आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। Yeah. Yes, ma'am. Ms. Twinkle is asking, what is the syllabus in KRSU? We already told that कि Indian books will be provided, जैसे कि इंडिया में बीडी चौरसिया है
फॉर एनाटॉमी, केडी त्रिपाठी फॉर फार्माकोलॉजी, उसके बाद भी देखा जाए तो फिजियोलॉजी के लिए चटर्जी वगैरह वही सारी बुक्स है, तो ये ऑलरेडी बता दिया गया है। थैंक यू सो मच। And the another question I have, how will be the fees fees installment will be there, EMI? ओके, दैट्स रियली नाइस। फीस का कैसा है? फीस के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है। ये इकलौता कॉलेज ऐसा है कि जो फीस के लिए बच्चों को तंग नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारा टाइम मिल जाता है। तो फीस के इंस्टॉलमेंट्स के लिए जैसे कि मैंने इन बिटवीन बोला था कि पर सेमेस्टर आपका जो खर्चा है वो 1,08,750, तो आप देख सकते हो यहाँ पे $2,900 है। $2,900 is approximately या 2,17,500 होते हैं मेरे ख्याल से 75 के रेट से। तो 2,17,500 अगर होते हैं, उसका हाफ अगर डिवाइड किए जाए तो वो वही होता है जो मैंने आपको बोला है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 1,08,750। तो इतने कम फीस में कहीं आपको मिले ये पॉसिबल नहीं है कॉलेज, और यही कॉलेज है जो कि आपको इतने कम फीस में देता है। दैट इज द थिंग। और इंस्टॉलमेंट्स की और लोन की अगर बात होगी तो वो डायरेक्टली काउंसलर्स को कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। And then one more question is there. So why we suggest KRSU for Indian students? Really nice question. दुनिया में कहीं भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जो कि 2 डिग्रीज देती। पहली चीज वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो KRSU है। सेकेंड थिंग, इतने कम बजट में इतनी सारी फैसिलिटी देने वाली कोई और यूनिवर्सिटी नहीं, वो KRSU है। इन स्टार्टिंग ऑल्सो आई सेड आई कैन कंपेयर दिस यूनिवर्सिटी विद द स्टैंडर्ड ऑफ द USA's मेडिकल कॉलेजेस और यूरोपियन मेडिकल कॉलेजेस, नॉट ओनली US इज नॉट द ओनली वन, बट वो यूरोप में आप देखोगे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के, इंडिया में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के स्टैंडर्ड्स बहुत हायर हैं। उसी के कंपैरिजन में KRSU इज देयर, किर्गिज एशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट। और रैंकिंग के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 15-15, 20-20 रिसर्च सेंटर होना ये छोटी बात नहीं रहती है, लाइक इट इज द बिगेस्ट थिंग। यस मैम, नेक्स्ट। Yes. So one more question is there. So do we हमें कोई रशिया में जैसे है तो हमें रशियन लैंग्वेज सीखने की जरूरत है? एक्चुअली रशियन लैंग्वेज का एक 1 आवर के लिए पर डे या फिर वीकली 2 और 3 आवर्स का एक क्लास होता है जो कि यूनिवर्सिटी परफॉर्म करवाती है 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। KRSU की बात की जाए तो आपको साल भर में रशियन वो लोग सिखा ही देते हैं, ताकि आपको जरूरत तो कैंपस में तो नहीं है, बट आउटसाइड कैंपस जब आप जाते हो, कुछ आपको खरीदना है, कुछ परचेस करना है, बार्गेनिंग करनी है, वहां पे घूमना है, फिरना है, तो इन चीजों के लिए आपको रशियन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। वो आपको वहां पे सिखाई जाती है। उसके अलावा आपको एकेडमिक में रशियन लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। I think we will conclude now because I too have some meetings, so we can you can tell from your side. Okay sir, yes. Yes ma'am, thank you so much. Thank you everyone. Due to some work I need to go on urgent basis. Neha ma'am will conclude the meeting now and she will tell you the contact details, how to contact, how to take admission, all that things, and documentation which is required. Passport, बहुत सारे स्टूडेंट पासपोर्ट के लिए वेट करते हैं, तो मैम विल गाइड यू कि पासपोर्ट के बिना भी एडमिशन कैसे होता है। आप पासपोर्ट बाद में भी निकाल सकते हो, दैट इज द थिंग। ओके, सो वी विल I will hand over to Neha ma'am. Neha ma'am, thank you so much for inviting. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable time. Thank you, Krishna. Yes. For all the details. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. So we have told all the details. हमने जैसे बात की about the security, about the hostel mesh facilities, syllabus. अगर आपके फिर अगर डॉक्यूमेंट कैसे आपका जो है प्रोसेस होगा, क्या आपका फीस स्ट्रक्चर है, कैसे इंस्टॉलमेंट है, जैसे कि सर ने, मिस डारिया मैम ने एंड कृष्णा जी ने भी बताया जो कि वाकई स्टूडेंट है। डॉक्टर कृष्णा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन नंबर। आप प्लीज रिक्वेस्ट कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हो, आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर द वैल्यूएबल टाइम।